Hello students, today's topic is Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA. IRDA is controlling and regulating all the insurance companies working in India. Fine. In today's session, we will discuss the objectives and the functions performed by the IRDA. The Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA, was established in 1999. IRDA is an autonomous statutory authority under the Finance Ministry of India. So it is an autonomous body and working under the Finance Ministry of India to regulate the insurance business, promote the investment in the insurance companies, ensure a steady growth of insurance industry and protect the policy holders interest. तो policy holder का जो interest है उसको भी protect करना वो भी insurance industry IRDA का काम है. It was formerly constituted as a regulator of insurance industry in April 2000. Well, in the beginning, IRDA is ultimately known as Insurance Regulatory Authority, but now it is known as Insurance Regulatory and Development Authority. Structure of IRDA. The IRDA has a chairperson and 4 full-time and 4 part-time members. The full-time members to be appointed by the government from among the person of ability, integrity and who have knowledge or an experience of a life insurance, general insurance, finance, law, accountancy and administration. तो फुल टाइम जो मेंबर्स होते हैं 4 वो एक्सपर्ट्स होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के या फाइनेंस के, लॉ, अकाउंटेंसी के, एडमिनिस्ट्रेशन के और जिनके में एबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने की और ग्रो करने की. IRDA has constituted Insurance Advisory Committee, a leading consumer representative insurance agents, women's organizations and industry and committee. It has also consumer advisory committee and a surveyor and a loss assessor committee. तो ये सारी कमिटीज हैं जो ऑलरेडी IRDA के अंडर में काम करती हैं, वो उन्होंने बनाई हुई है जो अलग अलग इश्यूज को, इंश्योरेंस कंपनीज के इश्यूज को वो देखती है, सॉल्व करती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA. फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर. सबसे पहला तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जिसने भी इंश्योरेंस बाय किया है. To protect the interest of policyholders and ensure them uttermost good treatment is the main objective of IRDA. Second, strengthen insurance industry. For the benefit of common people, IRDA will try to speedy and steady growth of insurance industry. And by controlling financial matter, IRDA will try to strengthen insurance industry. So insurance, सारी companies, insurance जो companies हैं जो डील करती है उनके फाइनेंशियल मैटर को IRDA कंट्रोल करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर को लेट डाउन करके कि उसी के हिसाब से सारी इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो ऑपरेट करेंगी. जैसे कि सारी बैंक जो है वो RBI के गाइडलाइंस को फॉलो करती है. इन सेम वे ऑल द इंश्योरेंस कंपनी हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस लेट डाउन बाय द IRDA. Growth of the economy. Aim of IRDA is to provide long-term fund to the government for the growth of economy. It is important tool for the government for funds. तो IRDA जो है वो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है. अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो IRDA जो है उसके पास, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी के हिसाब से जो भी फंड पड़ा हुआ है वो इंश्योरेंस के लोगों के प्रीमियम के जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट को डेप्ट के रूप में प्रोवाइड करती है. To give insurance regarding information. One of the aim of IRDA is to give insurance to the customer that they will be provided clear, correct and precise information about the products and services that they are buying. Fifth one, to create awareness regarding the duties. So by providing all type of information such as the premium, date of maturity, installment, reinsurance, loan, IRDA will try to create awareness regarding the duties and responsibilities of a customer. To establish effective grievance redressal machinery. IRDA जो है वो grievance redressal machinery को establish करती है, ठीक है, स्ट्रक्चर करती है. If any policy holder has any grievance or dissatisfactions with the insurance provider, तो ये जो केसेस, ये जो इश्यूज है अगर वो आपस में सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो IRDA will work as a grievance redressal machinery. 7, to bring self-regulation. One of the aim of IRDA is a maximum self-regulation in daily working of insurance industry as per the requirements of rules and regulations. ठीक है,
तो उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया कि एडा जो है वो सारी कंपनीज के डे टू डे एक्टिविटीज को सीधे स्ट्रक्चराइज कर देती है। टू टेक प्रॉपर एक्शन, एडा कैन to take proper actions in the case of administrative standards that are not sufficient or not that much effective। तो अगर उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर सफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं तो एडा जो है वो उसके ऊपर एक्शंस ले सकता है। टू इन्फोर्स हाई फाइनेंशियल स्टैंडर्ड by promoting fair dealing, transparency and systematic conduct with the insurance and to introduce reliable management information system, ADA aims to enforce high financial standard among the market intermediaries. By promoting fair dealing, transparency and systematic conduct with the insurance and to introduce reliable management information system, ईडा जो है वो सबसे हाई फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है सारे मार्केट इंटरमीडियरीज के बीच में। जितने भी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जो भी इंश्योरेंस के एजेंट्स हैं, जो भी इंश्योरेंस की कंपनी से जो बेचते हैं, उन सभी की डीलिंग्स को ये कंट्रोल करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ एडा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Issuing to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend और cancel such registrations। तो जिसने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के लिए प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए रजिस्टर करवाया है, उसको रजिस्ट्रेशन इश्यू करना, सर्टिफिकेट इश्यू करना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विड्रॉ करना या किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना, सस्पेंड कर देना, वो भी ईडा का फंक्शन है। While issuing certificate of registration, preference is to be given to companies providing the health insurance। जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइनिंग ऑफ पॉलिसी nomination by policy holders, insurable interest settlement of insurance claim, surrender value of policy etc are the functions of ईडा। ईडा के ये सारे फंक्शन है कि पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो नॉमिनेशन उसने सही से किया है या नहीं किया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका है कि नहीं है, यानी कि वो जो इंश्योरेंस लिया जा रहा है वो इंश्योरेंस वो उसी के पार्टी से बिलोंग कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस ले रहा है, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए उस इंश्योरेंस के ऑब्जेक्ट में। सरेंडर वैल्यू उसकी कैलकुलेट करना, उसको टेक केयर करना, ये सारी चीजें जो एडा देख के टेक केयर करता है। टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, specifying required qualification, code of conduct and to provide practical training to the insurance intermediaries and the agents are the functions of ADA। ADA का जो functions है वो सारे agents और intermediaries को क्वालिफाइड करना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट समझाना, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस सेल करने की, इंश्योरेंस का बिजनेस हैंडल करने की, ये भी फंक्शंस है उसका। फोर्थ वन, टू स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट, specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors। जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो लेट डाउन करना सर्वेयर्स के लिए और लॉस असेसर्स के लिए। यानी कि अगर कुछ केस हुआ है, कोई क्लेम आया है, या जनरल इंश्योरेंस का क्लेम है या लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है, तो अगर जनरल इंश्योरेंस का क्लेम है तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका इंश्योरेंस लिया गया था या जो प्रॉपर्टीज है जिसका इंश्योरेंस लिया गया था, उसका असेस कैसे करना है, उसका लॉस असेस कैसे करना है और क्लेम पास कैसे करना है, उसके लिए जो लॉस असेसमेंट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ईडा ही मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। प्रमोटिंग efficiency, in the conduct of insurance business, ADA promote the efficiency of human resource connected with the various aspects of business। ठीक है, जो भी लोग हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, यानी एजेंट्स वगैरह हैं, एम्प्लॉयज है, जो इंश्योरेंस के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको इफिशिएंट करना, क्वालिफाइड करना, उनकी जो इंश्योरेंस में वर्क करने की स्किल्स है उसको डेवलप करना। Promoting professional organization, ADA promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and insurance business, levying the fees and other charges for carrying out the purpose of ADA Act। तो एडा जो है वो प्रमोट करता है सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस के बिजनेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, उनकी फीस क्या होनी चाहिए, फीस चार्जेस क्या होते हैं, वो सारा एडा डिसाइड करता है। ऑडिट्स ऑफ इंश्योरर्स, इंश्योरेंस एंड इंटरमीडियरीज, इंश्योरर का, इंश्योरेंस कंपनी का और जो भी इंटरमीडियरीज एजेंट वगैरह आए हैं, सबके बुक्स का ऑडिट वो एडा करता है। ठीक है, एडा कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस, calling for the information including audit of insurer, insurance and the intermediaries and other organizations connected with the business। So not only insurer, insurance and intermediaries, but
any other business which are connected with the insurance companies or any other business organizations which are connected with the insurance business, उन सब के बुक्स को, उन सब के अकाउंट को एडा जब चाहे तब वो चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है. कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन. So control and regulation of the rates, terms and condition that may be offered by insurer in respect of general insurance business, not so controlled and regulated by the tariff advisory committee. तो ईटा की जो टैरिफ एडवाइजरी कमिटी है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो डिसाइड करती, और जो रेट या टर्म्स एंड कंडीशन टैरिफ एडवाइजरी कमिटी के कंट्रोल के बाहर होते हैं उनको ये एडा टेक केयर करता है, उनको ये एडा डिटरमाइन करता है. अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स. So books of account and statement of account shall be maintained as per the specified form and a manner and shall be rendered by the insurance companies and other intermediaries. सारे books और accounts और statements को मैनेज करने का काम जो है वो उन कंपनी का रहता है और ये करवाता है एडा उनसे बार बार ऑडिटिंग करके. Regulating funds and margin. Insurance companies will regulate investment funds and maintenance of margin of सोल्वेंसी. तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट के फंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, और मेंटेन करती है. यानी कि ईडा जो है वो कंपनीज के सारे फंड्स को मैनेज करता है और वो फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किसको डेप्ट देना है, कहाँ लोन प्रोवाइड करना है और कैसे उसका फंड का रिटर्न जो है वो और इंक्रीज करना, फंड की वैल्यू और इंक्रीज कैसे की जाती है, वो ध्यान देना भी ईडा का काम है. एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि कोई भी अगर ग्रीवियंस होता है, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इंश्योरर्स और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के बीच में या पॉलिसी होल्डर के बीच में, तो ये डिस्प्यूट जो है वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है एडा. सुपरविजन ऑन टैरिफ एडवाइजरी कमिटी. एडा विल सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी. तो एडा जो है वो टैरिफ एडवाइजरी कमिटी क्या टर्म्स एंड कंडीशन बना रही है उसको सुपरवाइज करना और उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई करने का काम एडा का है. Percentage of premium. IRDA is specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organizations. तो IRDA जो है वो प्रीमियम के परसेंटेज को स्पेसिफाई करता है कि कितनी इनकम प्रीमियम के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है, इंश्योरेंस से, और जो भी फाइनेंस की स्कीम्स है उसको प्रमोट करना या रेगुलेट करने का काम भी वो एडा का है, ठीक है. यानी कि कोई भी आपने नई स्कीम, नया प्लान या कोई नई पॉलिसी आपने लॉन्च की है तो उसमें कितना प्रीमियम होना चाहिए, क्या होना, मतलब कितना उसका टर्म, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए उसके रिटर्न का या क्लेम प्रोसीजर का, ये सारा जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या रेट्स हैं या प्रीमियम रेट्स हैं वो सब कुछ एडा फाइनलाइज करता है, एडा के परमिशन से ही होता है. परसेंटेज ऑफ अदर इंश्योरेंस. IRDA is specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural and social sector and exercising such type of other powers as may be described. तो ये कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस आपका रूरल में होगा जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में, और कितना परसेंटेज बिजनेस आपका अर्बन में होगा लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में, ये सारा बिजनेस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये स्कोप जो है वो उस परसेंटेज को डिसाइड ये एडा ही करते हैं.